Hello, a very good evening. So let's initiate the numericals which we were doing yesterday. So the numerical is find the position, nature and size of the image of an object 3 centimeter high. We have given the height of the object is 3 centimeter. So therefore HO is 3 centimeter. Place at a distance of 6 centimeter from a concave mirror. यानी कि we have object distance is 6 centimeter minus 6 centimeter. Of a concave mirror of focal length 12 centimeter. It is a concave mirror, so focal length would be minus 12 centimeter. So in this we need to find out the position, nature and size. Okay. So first of all, for finding the position, it means for finding the V, let us apply the mirror formula which says 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. Here your F is minus 12, तो 1 upon minus 12 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 upon 6 आ जाएगा. ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट वुड बी यानी कि 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 upon 12. Therefore V is equal to 12 centimeter. So we have find out the position of the image, that is 12 centimeter, and we need to find out the size of the image. Size क्या होगा इसका, यानी कि we need to find out the h dash और hi, that is equivalent to height of image upon height of object is equal to minus v upon u. height of image हमें नहीं पता, height of object है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, v है 12 माइनस v क्या हो जाएगा माइनस 12 एंड u हमारे पास ऑटोमेटिक ऑब्वियसली 6 है, कट हो जाएगा. तो एच आई इज इक्वल टू 3 इंटू 12 अपॉन 6. सो हाइट है 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 6 है, यानी कि पॉजिटिव 6 है तो इमेज क्या है आपकी अपराइट, यानी कि इमेज है इरेक्ट. सिंस द साइन ऑफ v इज पॉजिटिव एंड द साइन ऑफ height image is also positive, therefore image is virtual and erect. So nature of the image would be virtual and erect. Okay, so हमको अगर हमारे पास साइज इसका अगर v भी नेगेटिव होता, h भी नेगेटिव होता तो इमेज बनते रियल एंड इन्वर्टेड, बट इस केस में दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इमेज वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. अब concave mirror है, डिस्टेंस कितना है minus 12 centimeter. It forms a real image 4 times larger than the object, यानी कि इमेज क्या है 4 टाइम लार्जर. इसका मतलब मैग्नीफिकेशन क्या है हमारे पास 4 टाइम लार्जर, बट रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी -4. तो वी नीड टू कैलकुलेट द v, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर. अब वी नो द फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. m कितना है -4 माइनस v और u कितना है -12, कट हो जाएगा. v इज इक्वल टू -4 इंटू 12, दैट इज -48 सेंटीमीटर. So the image would be 48 centimeter in front of a concave mirror. A concave mirror of focal length 15 centimeter, यानी कि focal length is -15, forms an image of an object kept at a distance of 10 centimeter from the mirror. You have -10. Find the position, nature and size of the image found by it. So for finding the position, we apply the mirror formula, which is 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. Putting the value. एक बारी कैलकुलेशन खुद से ट्राई करके देखना, एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रही हूँ यू नीड टू ट्राई इट योर ओन.
तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। v आपका आ गया 30 सेंटीमीटर इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब कि पोजीशन क्या हुई 30 सेंटीमीटर। अगर नेचर क्या होगा, v 30 है तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज होएगी, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज। और साइज इसका क्या होगा, साइज के लिए m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी कि -30 और u कितना था आपका -10। तो इमेज वुड बी 3 टाइम मैग्नीफाइड, m बिकॉज 3 आ रहा है तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगी। अब इस केस में मिरर क्या था, कनकेव, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो अगर वर्चुअल डायरेक्ट इमेज होती है तो वो कब किस पोजीशन पे होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और पोल के इन बिटवीन होता है, तब इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, और वो हाईली मैग्नीफाइड होती है। तो मैग्नीफिकेशन आपकी 3 आ गई, यानी कि इमेज वुड बी हाईली 3 टाइम मैग्नीफाइड। An object 5 centimeter high is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. Height of object is 5 centimeter. Position क्या है उसकी -25 centimeter. Of a focal length 15 centimeter concave mirror, the focal length would be minus. Find the distance from the mirror at which a screen should be placed in order to obtain a sharp image. Also find the size and nature of the image. So, applying the mirror formula, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. 1 by v is equal to 1 by f minus 1 upon u. f था आपका -15 तो -1/15, u था आपका माइनस में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u आ जाएगा 1/25। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट द आंसर -5/+3 और आपका आ जाएगा 75। तो 1 by v इज इक्वल टू -2/75 और v इज इक्वल टू -75/2, और वी कैन राइट इट एट -37.5 सेंटीमीटर। सो इसमें जो इमेज, जो स्क्रीन मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इमेज, HI/HO is equal to -V/U. HO कितना था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, -V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37.5, और U था हमारे पास -25। (37.5) multiplied by 5 into upon -25. So by solving it, we'll get an answer -7.5 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन है, इट इंडिकेट कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड। सो द साइज ऑफ द इमेज इज -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेचर क्या होगा, सिंस द वैल्यू ऑफ v इज नेगेटिव, इट शो द इमेज इज रियल, एंड h की वैल्यू भी नेगेटिव है, इट शो द इमेज इज इन्वर्टेड। सो दैट्स हाउ वी कैन ऑल फाइंड आउट द, अगर हमें इस केस में मैग्नीफिकेशन भी निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू HI/HO। HI कितना था -7.5 और HO था 5, तो कितना आ जाएगा इसका -1.5। तो इसकी मैग्नीफिकेशन इतनी आ जाएगी, यानी कि इमेज तो मैग्नीफाइड है, बड़ी तो इमेज बन रही है लेकिन वो इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। A concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. A concave mirror produces 2 times magnified, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितनी होगी 2। रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी आपकी -2। इट मीन्स वी हैव गिवन m है हमारे पास -2 और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। सो अप्लाइंग द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला विच इज -V/U, m कितना था आपका -2 -V/-10 कट हो जाएगा तो v आ जाएगा आपका -25।
centimeter. So it means the image of the object is at -20 यानी कि 20 centimeter from the pole of the mirror and in the front of a mirror, यानी कि मिरर से के सामने बनेगी, मिरर के फ्रंट पे इमेज बनेगी. A convex mirror used in a bus has radius of curvature 3.5 meter. If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image of the car. So we have given here radius of curvature which is 3.5 meter. अगर radius 3.5 है तो उसकी focal length क्या हो जाएगी? 3.5 upon 2, it means it would be 1.75 meter. We have given the focal length and we have given the object distance 10 meter behind the bus, -10 meter. So for determine the position of the car, we will use the mirror formula which says 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, or 1 by v is equal to 1 by f minus 1 upon u. f कितना था इसके अंदर? 1.75. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो u की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10. इफ वी सॉल्व दिस हमारे पास आ जाएगा 1 by v is equal to 70 upon 47, sorry 47 upon 70, or we can say v is equal to 70 upon 47. If we solve it further we will get 1.5 meter. यानी कि जो इमेज है, द कार अपीयर टू बी एट द 1.5 मीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ये कौन सी इमेज बनेगी? इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. अब अगर हमें इसका साइज डिटरमिन करना है तो साइज के लिए m इज इक्वल टू -v अपॉन u. सो वी गेट v था कि 1.5, तो -1.5 अपॉन -10. सो we will get here 0.15, यानी कि जो साइज ऑफ द इमेज है वो 0.15 टाइम्स है देन द एक्चुअल साइज ऑफ द कार. अब m पॉजिटिव है यानी कि इमेज क्या होगी? इसकी इरेक्ट इमेज होगी. छोटी होगी क्योंकि 1 से कम है, बट इमेज वुड बी इरेक्टेड इमेज. और v प्लस में है तो वर्चुअल इमेज बनेगी इसकी. A concave mirror produces 3 times enlarged image of an object placed at a 10 centimeter in front of it. Calculate the radius of curvature of the mirror. हमको radius of curvature calculate करना है इस केस में. So see, we have given u है हमारे पास -10 centimeter, m है 3 क्यों है? क्योंकि वो concave mirror है, produces 3 टाइम enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. तो हमने m को क्या लिया इस केस में? 3 लिया, क्योंकि वो enlarged इमेज बनी है उसकी. हमें यहाँ पे नहीं शो किया हुआ कि वो रियल है कि वर्चुअल है इसमें, इसलिए मैंने m को 3 कंसिडर किया. ठीक है, सिंपल 3 कंसिडर किया. सो m को 3 लिया हमने. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमको r फाइंड आउट करना है या फिर f फाइंड आउट करना है. तो बाय अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला वी विल गेट, पहले हम मैग्नीफिकेशन पास गिवन है, हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं. m इज इक्वल टू -v अपॉन u. m कितना है? 3. अगर कॉन्केव मिरर है देन ऑब्वियसली उसकी जो इमेज क्या बनती है? रियल इन्वर्टेड बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. ठीक है सर, एक ही केस उसका ऐसा होता है जब उसकी इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, जब v पॉजिटिव होता है. बट इस केस में हमारे पास जो था, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव 3 कंसिडर किया. तो आप भी ऐसे करोगे. अगर हमें गिवन नहीं है देन यू विल टेक द इमेज एज अ पॉजिटिव, जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लेंगे. तो m को 3 लिया, u है -10 कट, v आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. सो बाय अप्लाइंग द मिरर फॉर्मूला विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f. u था आपका -10. तो f आपका आ जाएगा -15. ऑब्वियसली माइनस में आएगा बिकॉज ये कॉन्केव मिरर है.
तो एफ का हो गया -30, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2f। आर आपका आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी 30 सेंटीमीटर। सो we have almost done 14 question till now of the reflection. So I have covered almost every question, ठीक है। जो भी मेरे को क्वेश्चन लगा जो इम्पॉर्टेंट है और जिस तरह के क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकते हैं, आई हैव कवर इंटायर क्वेश्चंस। नाउ आई विल सेंड यू वन वर्कशीट बाय वाचिंग, व्हेन यू वॉच दिस वीडियो, then you will solve that worksheet, and after that we will start reflection. So till then, watch this video, and if you have any doubt, please don't shy and just let me know.